Hello students, I hope you all are fine. So there are few questions of quadratic equation. We will start from medium level questions to the higher level questions. Okay. So step by step solve on your notebook side by side. Okay, so let's start with the first question. Solve for x 1 upon a plus b plus x equals to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x. Okay. So firstly what we will do, we will simplify it. 1 upon a plus b plus x. Take 1 by x term on left hand side. What you will be getting? Equals to 1 by a plus 1 by b. Okay. Then take LCM x times a plus b plus x minus a plus b plus x equals to, now take LCM as ab. इधर क्या आ रहेगा बेटा? b plus a. Done. This implies x minus, सबके साथ माइनस आ रहेगा, x टाइम्स a plus b plus x. ठीक है, देखो कितना इजीली हम कर पा रहे हैं. स्टेप बाय स्टेप करोगे इजीली. x plus x minus x cancel. Take minus as common here. Minus of a plus b upon x times a plus b plus x. Okay, it is equals to a plus b upon ab. Now this implies a plus b and a plus b cancel out. So minus 1 upon x times a plus b plus x equals to 1 upon ab. Okay, so wait a minute. Hanji, after that, now see, pen is not working. Wait. Now take reciprocal on both sides. A plus b plus x equals to ab. So minus ax minus bx minus x square. Ab will come to the left side, becomes negative because it was positive on another side. Take negative sign common. All negative terms becomes positive, right? Rearrange the terms. Ax plus ab plus bx plus x square. Ax plus b plus x यहां से कॉमन बेटा, b plus x. So a plus x और x plus a, x plus b और b plus x, whatever, है ना? तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस a एंड x की वैल्यू माइनस b. So these are the two values of x solved. Was it difficult? No or yes? Done. चले आगे. चलो, हो गया सबका? चलो नेक्स्ट करते हैं. This one, it's also very easy. What will be the first step? इसको भी बेटा सिंप्लीफाई करो. First of all, take LCM. x minus 2 minus x, है ना? Minus x plus x cancel out. Equals to 3 minus 2. X into x minus 2 will go on another side and it will be multiplied with the 3. Minus 2 equals to 3x square minus 6x, है ना? 3x square minus 6x plus 2 equal to 0. Now this is the equation. Product is 6, है ना? And the sum is minus 6. We can't solve it. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है इसकी बेटा? नहीं हो सकती. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नो मैटर्स इफ इन द एग्जाम अगर आपको बोला है कि फैक्टराइजेशन से करो, उससे करना पड़ेगा, बट अगर फैक्टराइजेशन से हो रहा होगा तभी वो टीचर बोलेगा. अदरवाइज यू हैव टू डू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अगर सॉल्व लिखा तो आप कोई भी मेथड अप्लाई. अब यहाँ पर तो ये हो ही नहीं रहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना? तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर.
क्या करते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में? पहले डी निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस 4ac, है ना? आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी सी हेयर। ये ए आ गया आपका 3, बी -6, सी आपका 2 आ गया, ठीक है? पुट करो वैल्यूज, -6 -4, वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ सी इज 2। This implies d equals to 36, 4 3 is 12, 2 is 24, so d आ गया बेटा हमारा 12, ठीक है? नाउ वैल्यू ऑफ x इज फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, पुट द वैल्यूज हेयर, माइनस वैल्यू ऑफ b इज -6 प्लस माइनस d की वैल्यू बेटा 12 है, a की वैल्यू 3, ठीक है? सो 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6, 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर्स बना लो बेटा, 2√3 अपॉन 6। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6। कटिंग देखो हो रही है इसकी, जितना सिंप्लीफाई हो सकता करो इसको, 2 1 जा 2 3 जा, यस बेटा सिंप्लीफाई जितना हो सकता उतना करना है। दिस इंप्लाइज एक्स की दो वैल्यूज आ गई बेटा आपके पास, 3 प्लस √3 अपॉन 3, सेकेंड वन इज 3 माइनस √3 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। डन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक 1 minute, कंप्लीट दिस, हरी अप। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा था उधर, 1 मिनट बेटा। चलो ये देखो, at t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock at t minutes past 2 p.m. time needed by minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t by 4 minutes। t फाइंड करना है आपने। देखो कैसा क्वेश्चन है, ऐसा बुक में नहीं है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। पिछला वाला तो बोल रहे थे आसान है, ये वाला करके दिखाओ। चलो ये भी इजी है बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको पता लगी ना, थोड़ा बहुत भी पता लग गया, आइडिया मिल गया क्या है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना आता है, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, ये क्या दे दिया वैल्यू, टाइम दे दिया तो हमसे सॉल्व नहीं होगा। जस्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। ओके, सी बोल रहे टी मिनट्स पास 2 p.m. द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टू शो 3 p.m. है ना? जैसे 2 बज के कुछ मिनट हुए, हमें नहीं पता कितना टाइम और 3 बजने वाले हैं, तो उसके बीच में कितने मिनट्स का फर्क है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। वॉज 3 p.m. अच्छा वो बोल रहा है 3 minutes लेस देन टी बाय 4 minutes। ओके, टाइम बिटवीन 2 p.m. एंड 3 p.m. कितना फर्क होता है इसमें बेटा? 1 hour। 1 hour मीन्स 60 minutes, क्योंकि उसने मिनट्स के हिसाब से, तो हम भी उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। अब देखो गिवन क्या है, टी मिनट्स पास्ट 2 p.m. needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t by 4 minutes, है ना? 3 minutes less than t by 4 minutes। बेटा यहाँ पर टी स्क्वेयर है, ठीक है? टी स्क्वेयर बाय 4 है। अब देखो टी मिनट्स पास 2 p.m. द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड क्लॉक टू शो 3 p.m. was फाउंड टू बी, यहां पर ही आपको क्लू मिल रहा है 3 minutes लेस देन टी बाय टी स्क्वेयर बाय 4 minutes।
सो टी इज टी स्क्वेयर बाय 4, लेस देन टी स्क्वेयर बाय 4, उतना कम। तो टी स्क्वेयर बाय 4 से आप माइनस करोगे 3, है ना। टी इक्वल्स टू टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3, इतना पता लग गया आपको। हाँ जी बेटा। टाइम पास्ट, कितना टाइम पास हुआ, दैट इज नंबर ऑफ मिनट्स पास्ट 2 PM। ओके। 3 बजने में टाइम कितना है, वो आपने अभी वैल्यू लिखी ना आपने बेटा, टाइम रिमेनिंग टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3, है ना। इसका कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। चलो ठीक है। 3 बजने में कितना टाइम है वो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। टोटल आर इक्वल्स टू जितना टाइम पास हो गया, कितना टाइम पास हुआ, टी मिनट्स पास हो चुके हुए हैं। 2 बजे, दो बजने, जैसे 2 बज गए हैं ना, 2 बजे से कितना टाइम ज्यादा हो गया, वो टी मिनट्स है। और 3 बजने में कितना टाइम रह गया, दैट इज टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, है ना। टोटल 3 बजने में कितना टाइम पास्ट प्लस टाइम रिमेनिंग, ये बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो, टोटल आर इक्वल्स टू क्या आ गया, टोटल आर मतलब 60 मिनट्स। 60 इक्वल्स कितना टाइम पास हो गया है, 2 बजे कितना टाइम हो गया, टी मिनट्स। टाइम रिमेनिंग टी स्क्वेयर बाय 4 माइनस 3, है ना। चलो, 60 इक्वल्स टू, अब यहां पर एलसीएम ले लोगे, 4t प्लस टी स्क्वेयर माइनस 12 अपॉन 4, ठीक है। 460 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये आ गया 4t प्लस टी स्क्वेयर माइनस 12, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होके यू गेट 240, ठीक है बेटा। देन उसके बाद देखो इधर सॉल्व करते हैं। 4t स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर माइनस 12 माइनस 240 इक्वल्स टू 0। सो 4t स्क्वेयर, यहां पर स्क्वेयर क्यों लगा रहे हो आप, यहां पे नहीं आना। 4t प्लस टी स्क्वेयर माइनस 252 इक्वल्स टू 0, ठीक है। टी स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 252 डिग्री वाइज अरेंज कर लिया हमने, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। प्रोडक्ट -252 और सम आपको 4 चाहिए, 18 और 14 पे कर लो, हो जाएगा। चलो, -14, आपको एक हिंट मिल गया ना स्टेटमेंट से, तो आपका सारा सम हो जाता है। नहीं बेटा, आप बोल टाइम वाले सम पता क्या है बेटा, बुक में बेटा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कहाँ गई है आपकी। लोअर क्लासेस में क्यों इतना कुछ कराया रहता है, हाफ हाफ पास टू, मतलब ऐसे आपको क्लॉक वाले सम कराए रहते हैं, बस वहां तक ही सीमित रहना है आपने। बेटा लाइफ टाइम में चीजें चलती हैं, काम आती हैं, ठीक है। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, 14। लास्ट में आपने कंक्लूड करना है, सो टी इक्वल्स टू 14 मिनट्स, आंसर। डन, क्लियर। चलो आगे चलेंगे। देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिख के देखो बेटा, स्क्रीनशॉट मत क्लिक करो, लिख के देखोगे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट करें। चलो, ये आया ना अच्छा समझ, देखो क्या है। इन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर बाय 40 मीटर, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। Rectangular pond is to be constructed so that the area of grass strip of uniform width, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म विड्थ, सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी इतना 1184 मीटर स्क्वायर। Rectangular pond is constructed so that the area of the grass strip of uniform width surrounding the pond would be this.
फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। इजी है, करें? यस बेटा। डायमेंशन देखो उसने क्या दी है आपको, राइट डाउन। ये देखो, जैसे आपके पास, ये आपके पास मैंने बना दिया रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है? ध्यान से समझना। ये आपका हो गया पॉन्ड, ठीक है? ये आपका पॉन्ड है, बाहर वाला एरिया सारा आपका पार्क का हो गया। और यहां पर क्या आ रहेगा ये एरिया में, जो ये ग्रास आ रहेगी आपकी, है ना, ग्रास स्ट्रिप्स जो भी वो बोल रहा था, यहाँ पर ग्रास स्ट्रिप्स। इसका लेंथ ब्रेड्थ क्या दिया हुआ आपको, 50 और 40, है ना? और पॉन्ड का आपको एरिया दे रखा है, नहीं पॉन्ड का नहीं, स्ट्रिप्स का। सो हाँ, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप्स। अब देखो, सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल लो, ठीक है? बेटा मैं सारा क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पर कंप्लीट नहीं आएगा, आप पेपर में प्रॉपर लिखोगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर, ब्रेड्थ इज 40 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क का। एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, है ना, इक्वल्स टू 50 इंटू 40। 50 इंटू 40 क्या आ गया, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा? आपको और क्या दिया है, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप्स, वो कितना, 1184 मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो पूरे पार्क का एरिया अगर ग्रास स्ट्रिप से माइनस कर दोगे तो आपके पास पॉन्ड का एरिया आ जाएगा, है ना? एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल टू, यहाँ पे 2000 है। जितना रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है उसको आपने क्या करना है, ग्रास स्ट्रिप के एरिया से माइनस कर दो। आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी ना पॉन्ड की, निकल जाएगी। देखो ये कितना आ रहेगा आपके पास, 816 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब आपको उसने क्या बोला था, ये लेट कर लो यहाँ पर यूनिफॉर्म विड्थ उसकी, पॉन्ड की विड्थ लेट कर लोगे, लेंथ भी पता लग जाएगी। फिर जो आपका पार्क का लेंथ ब्रेड्थ है उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है? लेट यूनिफॉर्म विड्थ, किसकी यूनिफॉर्म विड्थ की बात कर रहे हैं हम, पॉन्ड की, एक्स है, ठीक है बेटा? इधर से भी आप एक्स ले लो, इधर से भी एक्स ले लो। ये कितना था बेटा आपका, 40, है ना? 40 ब्रेड्थ है, उसमें से सब्ट्रैक्टेड एक्स प्लस एक्स, है ना? इसको सब्ट्रैक्ट कराना है आपने। तो ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 40 - 2x। इन द सिमिलर वे लेंथ इज x, और यहां से भी x, तो टोटल लेंथ 50, 50 - 2x, ओके? सो लेंथ ऑफ पॉन्ड इज 50 - 2x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, so according to statement length and breadth will be multiplied together, and the area of pond we already know, that is 816, right? So we get 2000 minus 80x multiplied, है ना, minus 2x will be multiplied with 50, simplify it,
माइनस 100x प्लस 4x² इक्वल्स टू 816. डन. सो 4x² minus 180x 2000 minus 816, you will be getting on simplification 1184 equals to 0. Now take 4 as a common factor. X square minus 45x plus इधर कितना आ रहेगा आपका 2296, right? So x square minus 45x plus 296 equals to 0. डन. इतना देख लो. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है, इसकी कर दो. -37x minus 8x plus 296 equals to 0. So x will be taken as a common factor. X minus 37 minus 8 x minus 37 equals to 0. So x minus 37 x minus 8 equals to 0. So x equals to 37 comma 8. अब दो वैल्यूज आ गई x की, चेक करेंगे अब दोनों. आर बोथ दी वैल्यू सेटिस्फाइड. लेंथ ब्रेड तो एक ही होगी उसकी, दो तो नहीं हो सकती. अब देखो इधर, व्हाट वाज द लेंथ? 50 minus 2x. x की वैल्यू 37 इधर पुट करो. 50 minus 2 37. 50 minus 74, that is -24 मीटर. लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नो. सो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया. नाउ पुट x इक्वल्स टू 8. सो लेंथ इक्वल टू 50 minus 2x. x की जगह 8 पुट करो. 50 minus 16, that is 34 मीटर. इन द सेम वे ब्रेड्थ भी पॉइंट की आ रहेगी बेटा. b इक्वल्स टू 40 minus 2 times 8. We will be getting 24 मीटर. Therefore, length of pond एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड. लास्ट में बेटा ऐसे आपने वो करना है, कंक्लूड करना है अपने आंसर. नहीं तो हाफ या एक नंबर कट जाएगा. ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट. ठीक है. 34 मीटर, 24 मीटर. ओके, वेट अ मिनट. मैं अब देखो आपको विजिबल. ओके, डन. एनी डाउट? चलो, थैंक यू सो मच क्लास.